represents the collective voice of FPOs in India. And we've been working on this agenda for more than 7-8 years now. And Vijay, Vaishali, me, and Anisha, we are all part of the NAFPO team. And what does NAFPO do? It works towards strengthening FPOs through institutional development, strategic linkages, and today's event is part of that strategic linkage programs. We also do research, insights, and policy advocacy. We are shortly going to launch our annual State of the Sector report this week. And NAFPO engages in a lot of policy platforms and partners with government and civil society towards building a collective ecosystem for our FPOs. So that's broadly about NAFPO. I'll not take more time on this agenda and quickly move into context setting for our showcase event. All of you would have already connected with Vijay in preparation for this program. So we are very happy to share that Exim Bank wants to participate with farmer collectives and sponsor their initiatives. And we have some really strong FPOs in our network. And today we have more than 350 FPOs who are represented by people on the call today. So the invitees include Sandeep ji and Suhail ji, who represent Madhya Pradesh FPOs, and Sandeep ji, Mahfouz, and Mansoor ji, who represent Uttar Pradesh FPOs. We also have Ranjan ji, who represent Assam FPOs, and also more people who have been working with the FPO system for a very long time. So I'm not sure if Yogesh ji also could join on the call, but he, as many of you know, he's our CEO of Madhya Bharat Consortium as well. And that consortium is also represented on the call today. So really, really happy to have so many representatives. From Exim Bank, who are our chief guests on the call today, we have Ravidas ji, Ganesh ji from Exim team. So I will now hand over to Ravidas ji to share a little bit more about the Exim Bank and GRID program. Team from Exim Bank, would you like to unmute and share? Sir, I'm Hello. Shilpi. I'm audible? Yes, sir. I'm audible? Yes, Yes. sir. Yeah, myself Ravidas, Deputy General Manager. My team Shilpi, Chief Manager, and Ganesha, Officer. Sorry, today I'm not attending this meeting from the office due to some other exigencies, but I'm happy to connect. Vijay, in fact, sent message to me that he'll not be able to attend today. And Sudha ma'am and Vaishali is also. yeah, I'll be leading it. So before we start, because today my team will be leading the meeting, I'll be just whenever required, I'll pitch in. So can we just switch on our videos for some time and introduce ourselves so we can take it forward, ma'am? Is it possible? Maybe. Sure, my connectivity was a bit poor today, but I can understand. Even I am going to switch it off, turn off my videos, if possible. Hello, Ranjanji. Ravidas, would you want all people on the call to make introductions? Then that will take No. Just we wanted to know each other. No, going forward, definitely we will be dealing with each other on and off this. It's okay. If any difficulty, connectivity issue, we can. So maybe we can do a quick audio introduction if everybody cannot. Yeah. Can switch on the video. You have introduced properly, ma'am. But just I thought of if possible we can. Otherwise, we'll proceed with the meeting straight away.
So I'll request my team, Shilpi and Ganesha, to explain about Exim Bank and specifically GRID, how we can connect and what is the purpose of GRID and little bit of mass also. That's like next level of our engagement with these FPOs and the ultimate beneficiaries. Now over to Shilpi and Ganesha. Yes, sir. So, Exim Bank's GRID program is basically about grassroots initiative program wherein we handhold producer companies or institutions which have the capacity or capability for becoming big, or they are into niche products or products which are of cultural importance to India, and there is a need to promote such products in smaller districts, and there is not much of financial help available to them. So we intervene in this segment and try to understand their needs and assess how we can help them. What is the requirement, whether it is infrastructure requirement, training requirement, or whether they require marketing assistance, how we can pitch in, how we can level them up in terms of infrastructure, and how they can start eventually, how can they start exporting, because the products they are into, for example, chilies from Nagaland or turmeric from Maharashtra or handloom from Telangana, they're all very critical products from that particular district and lagging behind, have not received much of help. So we try to identify under different government initiatives like One District, One Product, District Exports Hub. So we try to intervene through these government schemes and identify such producer companies, such farmer companies, and assist them. That's very good to hear. Thanks for sharing. So there might be some overlap with One District, One Product already in our FPOs present, and some of the produce might not overlap. But I'm assuming that is all right because you're keen to still know Yeah. about Sudhaji, I would FPOs. like to add a little bit on this. Our basic is the Exim Bank is solely owned by government. India, the main purpose of his Exim Bank is to support Indian exports or indirectly to generate or save foreign currency for the country. That is the basic objective of Exim Bank, wherein we support big companies, EPC companies to take up overseas projects. They are the large companies, Tata, you name it, all are our clients. In addition to that, we also focus our social concern and grassroots level. The name it's a GRID means grassroots initiatives for development program. Wherein we seek some of the activities for India is a majority agri economy, but many times they are not able to produce good products. Though they grow, harvest, but storage is not there. But packaging facility is not there. Storage is not there. Drying facility is not there. They're following just traditional methods, all these things. Though there is a market, they are not in a position to produce good more because of the shortage of the knowledge or shortage of support, financial support. So we identify such beneficiary. And one most important aspect of our program, we are not directly going to individual beneficiaries, just like self-help group, very small group, individually they are helping. But we are not into that. We're into NGOs where they manage and the beneficiary will be the broad membership. For example, FPO. There are many shareholders. There are many members of the FPO. So we extend our benefit to at FPO level, which can be utilized by all the other beneficiaries. They can come to the FP common facility level and utilize it. That is our main concern. Our individual help is not directly to the individuals, one-to-one. So that is the reason we are trying to connect with the FPOs, FPCs, societies,
for example, handloom, artisans. They may not be having FPO kind of thing, but they have societies. They are the member of societies. So we extend our help at society level. For example, industry clusters. So many small companies, they are member of the clusters, associations. My help will be extended at the association level, so that common facility benefits can be utilized by all others and to grow them. That is the basic premise of this grid. After that, there is a MAS program, Market Assistance Program, we call services. Once you have a product, but you don't know where to sell. You have very good product, but you don't know how to package it and sell it. So we can provide market linkages also. We'll connect you to buyers, sellers meet, so you can take your beneficiary to that level. They can export or they can sell in India also. But ultimately, we look now, going forward down the line, they should be able to export that product. Their quality, their packaging, their size, they should be at par with the exporting company. That is our ultimate aim. So that is the basic of this thing. If any questions, we can. Understood. And it's a really good initiative, Ravidas. I'm so glad that you're actually making efforts to reach out for this initiative from Exim Bank. Because one more to Sudhaji, I agree with you. You were telling no overlapping. We totally agree. You are doing some activity, NABARD is doing some other activity, SIDBI is doing some other activity, everybody is, even NAFED is doing something. They are into this development activities, grassroots level. We don't mind working with them. Otherwise, if despite of all these agencies helping somebody, there may be some gap. Correct. We'll try to fit in and help, bridge that gap. That can also be done. Yes, that's really heartening to hear. Thank you, Ravidas ji and the Exim team for setting this context. What we would do now is open the floor to our FPO representatives, and feel free to share a little bit about your FPO. FPOs, in fact, because you represent multiple FPOs, so you can talk about their produce, their membership, their strengths a little bit, maybe for 2 to 3 minutes. And then if you have any questions that you want to ask Exim team, then you can ask. सुधा जी, आई रिक्वेस्ट इफ एग्जाम की टीम ने थोड़ा ब्रीफ हिंदी में दिया तो अच्छा रहेगा. फील्ड टीम है, उसके बाद एफपी अपना इंट्रोडक्शन और अपना ब्रीफ दे देगी. Okay, that's a good idea. So, Shilpi, would you be okay? अच्छा, they want to hear it in Hindi. Yeah. ठीक है, शिल्पी जी. हाँ, yes sir. Ganesh, So basically, जैसा सर ने भी बताया, ग्रिड एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एक्सिम बैंक पहली बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ओन किया जाता है. इट इज पूरी तरीके से 100% स्टेक जो है एक्सिम बैंक में भारत सरकार का है. तो हम भारत सरकार द्वारा संचालित बैंक है. अब हम एक्सिम बैंक का एक प्रोग्राम है ग्रिड, ग्रास रूट्स इनिशिएटिव, जहां पर हम आर्टिजन्स को, एनजीओज को, एफपीओज को सपोर्ट करते हैं एट ग्रास रूट लेवल. मतलब जहां से उनके प्रोडक्ट की एट बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल, वेर इन वी विल सपोर्ट देम विद, उनको बिल्ड करने के लिए उनको मशीनरी चाहिए, या उनको ट्रेनिंग चाहिए, या उनको हैंड होल्डिंग ही चाहिए ये समझने के लिए कि मिट्टी कैसी है, या कहाँ कैसे हम कनेक्ट करें मार्केट के साथ इस चीज में. और वो जो भी उत्पाद कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी चीज वो बना रहे हैं, चाहे वो साड़ी है, चाहे वो कोई क्रॉप है, चाहे वो फूल है, उसमें उनकी दे आर डूइंग इट, मतलब सिर्फ वो ही कर रहे हैं. और उसमें एक भारत सरकार को, या उसमें एक नजर आता है कि इट इज वेरी, हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारी कल्चर को, हमारी डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए वो बहुत जरूरी है. हम आगे जाके अगर उसमें उसको हैंड होल्ड करें, उसको बढ़ावा दें, तो हम शायद उसको आगे उसका निर्यात भी कर सकते हैं बाहर.
तो इसलिए आयात निर्यात बैंक जो हम हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, हम अब रोल प्ले करने आते हैं यहाँ पर टू हैंड होल्ड प्रोडक्शन और मेकिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट में कैसे हम आके हेल्प करें उन संस्थाओं की, जिससे वो उसको और अच्छे से बेहतर तरीके से बना सकें, भेज सकें, और एक अंतिम ये रहता है कि हाँ, वो एक्सपोर्ट की तरफ बढ़ पाए, वो ऑर्गेनाइज छोटे से बड़े बन पाए। हम्म। और इस कॉल में जितने एफपीओस हैं, आप उनको ग्रांट द्वारा सपोर्ट कर सकते हैं फॉर एनी फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट दे नीड। इज दैट हाँ करेक्ट? ओके। जी बिल्कुल। ओके। सो आई थिंक ये इंफॉर्मेशन अच्छा है। तो अब हम एफपीओ साथियों से पूछते हैं कि थोड़ा कोई भी अगर अनम्यूट कर सके, अपने एफपीओस के हाँ बारे में थोड़ा बताएं। सुधा जी, जस्ट ऐड, मतलब यहाँ पे थोड़ा मैं जी। ऐड करना चाहूंगा। ग्रांट इज वन पार्ट ऑफ दैट, डायरेक्ट ग्रांट फॉर बाइंग सम और सेटिंग अप फैसिलिटी, बाइंग मशीनरी। उसके अलावा हम नॉलेज शेयरिंग भी करते हैं। दे वांट सम ट्रेनिंग, हम सब्जेक्ट एक्सपर्ट के ढूंढ के, रिलेवेंट लोगों को ढूंढ के ट्रेनिंग भी इम्पार्ट कर सकते हैं। हम्म। और उनको बिजनेस रिलेटेड भी कर सकते हैं, हाउ टू एक्सेस मार्केट, उसके लिए क्या क्या चाहिए, वो एजुकेशन भी दे सकते हैं। वेरी नाइस। तो कभी कभी ये होता है कि उनके पास फैसिलिटी सब कुछ होता है, ग्रांट उसलिए नहीं चाहिए, लेकिन उनको कुछ ट्रेनिंग चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो वो भी कर सकते हैं। इट कैन बी, वो कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। मशीनरी देंगे, उसका ट्रेनिंग देंगे, फिर नॉलेज शेयरिंग भी होगा, ये भी कर सकते हैं। वो सब कुछ जानते हैं, मशीनरी नहीं है, सिर्फ मशीनरी दे सकेंगे। वो बोलते हैं सर आप सिर्फ हमको कॉमन फैसिलिटी बना के दे दीजिए, बाकी का हम कर लेंगे, वो भी कर सकते हैं। फिर वेरियस, जब हम साथ में बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, तो विल आइडेंटिफाई, मतलब हम पता करेंगे कि क्या गैप किधर है, कहाँ पे हम लोग हेल्प कर सकते हैं, करेक्ट। उसी हिसाब से हम कर लेंगे। जी। ठीक है, ओके। ये बहुत अच्छा बताया आपने, क्योंकि सपोर्ट तो कई तरीके से हो सकता है। तो वी आर वेरी हैप्पी टू हियर एग्जिम बैंक हमें सपोर्ट करना चाहता है। ओके। सो इफ नथिंग एल्स, देन लेट्स ओपन टू एफपीओस। कोई अगर अनम्यूट करके अपने एफपीओस के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे तो। संदीप जी, आपसे शुरू करें क्या? जी जी, थैंक यू। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों का पूरा समझ के, खासतौर पे एग्जिम बैंक के बारे में जान के। और खाली जो फंड ही प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं आप लोग, ट्रेडिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पीओज हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये जान के काफ़ी मतलब वो है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं टीआरआई से हूँ, और मैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों जो हमारे एफपीओ बने हुए हैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। तो इसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों जगह जो है हमारे एफपीओस हैं, ये जो है महिला किसानों को लेके बनाए गए हैं, स्पेशली पूरी तरह से 100% वुमेन लेड एफपीओस हैं। और ख़ासतौर से कुछ एफपीओस तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे आदिवासी एरिया में हैं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश दोनों जगह में। और वाकई एक शुरुआत उन्होंने कर दी है, लेकिन आप जिस तरह का सपोर्ट मिलता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट मिलता है, तो निश्चित रूप से वो बहुत अच्छा कर पाएंगे। और लगभग उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन जो यूपीएसआरएल है, उसके माध्यम से वहाँ पर 70 एफपीओस हमारे साथ जुड़े हैं, जिसमें से 10 एफपीओस ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जो लाइट हाउस एफपीओ के रूप में काम कर रहे हैं। और उन्होंने काफ़ी अच्छा टर्नओवर शुरुआत कर दिया है, और एक अच्छा एक माहौल उत्तर प्रदेश में बना है। सेम इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी लगभग 150 एफपीओ यहाँ पे एमपीएसआरएल के माध्यम से बने हैं, लेकिन उसमें से 25 एफपीओ हम लोगों के जो टीआरआई नेपको और समोन्नति के सहयोग से यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ में एफपीओ के सीईओज भी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वे अपने बारे में बताएं कि उन्होंने किस तरह से न केवल बाकी चीज़ों में केवल, बल्कि ऑर्गेनिक जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं उनके बारे में भी सेल कर रहे हैं। हमारे पेटलाबाद जो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के जो एफपीओज हैं, हमारे साथ में यहाँ पे अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट के एफपीओज हैं,
और जो जो भी साथी जुड़े हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है बताएं। तो सर मैं आपको एश्योर करना चाहूँगा कि हम लोग, अगर आप लोगों का साथ मिलता है तो निश्चित रूप से हम एक अलग पहचान बनाने की, खासतौर से महिला के सामने यहाँ पे, तुझे कि जितने भी पूरी तरह से महिलाओं के हैं और 100% महिला इसमें डायरेक्टर्स हैं, बीओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी वही हैं और कार्य शेयर होल्डर्स भी 100% वही हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव हम लोगों के आप लोगों के माध्यम से हो सकता है। तो ये निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि केवल 25 और 10, हमारे 35 तो हमारे ऐसे हैं, जो 35 तो ऐसे हैं जो मॉडल क्रिएट करने के लिए बिल्कुल आगे आ चुके हैं, और बाकी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, वो सब जुड़ेंगे धीरे धीरे, हम लोग सभी आगे लेके जा रहे हैं। तो ये हमारे एफपीओस के साथी हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको बताएं सर जी। और साथ में हमारे तो टीआर जी। इन एडिशन टू संदीप जी, मैं भी टीआरआई से ही हूँ। तो जैसे संदीप जी अभी बता रहे थे उसमें एक दो चीज और मुझे ऐड करना है। एक तो ऑब्वियसली जैसे देखेंगे कि तो ओवरऑल टीआरआई 104 के आसपास एफपीओ दो तीन तीन स्टेट को मिला के काम कर रहे हैं। बट जैसे खासकर मॉडल एफपीओ की जो बात कर रहे थे संदीप जी, उसमें अगर देखेंगे तो 1.5 करोड़ से भी ऊपर का टर्नओवर है एक साल 1.5 साल में। देख सकते हैं एफपीओ का। बट उसमें एक चीज मेजरली जो हमें लगता है कि एफपीओ लेवल पे, खासकर लाइट हाउस एफपीओ में हमें जो सपोर्ट चाहिए जिस तरह का, वो एक्चुअली देखेंगे तो आज के डेट में हमारे पास केवीएच का कॉन्सेप्ट है, एक बोलते हैं कृषि वैल्यू हब। सो विच इज अराउंड 15 to 20 बोल सकते हैं एग्रीकल्चर बेस्ड इंटरप्राइजेस ऑलरेडी हैं ये 10 एफपीओ में। 15 से 20 इस तरह के अलग अलग यूनिट्स हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं। तो वहां पे क्या है ना कि थोड़ा सा हमें सहयोग तो एक तो मेजरली इस तरह का चाहिए कि खासकर प्रोसेसिंग यूनिट्स को हैंडल करने के लिए, चलाने के लिए, जो एंड टू एंड पूरा उस प्लांट पे क्या एक क्या बोल सकते हैं प्रोसेस हो सकता है, और एक सिस्टम इस्टेब्लिशमेंट की जो बात करते हैं। हेलो हेलो। यस, इस बात कीजिए, हाँ आपका आवाज क्लियर हाँ है। हाँ हाँ। तो उसमें जो प्रोसेस इस्टेब्लिशमेंट की क्या प्रोसेस या फ्लो होगी, ये थोड़ा सा हम लोग को एक हेल्प चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार एग्जैक्टली कहाँ से उसको, चाहे अकाउंटिंग सिस्टम क्या होनी चाहिए, या फिर एक बोल सकते हैं कि अगर प्रोसेसिंग यूनिट या प्लांट है तो क्या क्या इसेंशियल स्टेप्स होंगे या प्रोसेस होंगी, चीजें होंगी जो दीदी लोग को इजीली, कि आदमी कभी भी बदले उस वो सेटअप बना रहे तो कोई भी आके उस सेटअप पे बैठे तो वो चलने लगे। एक तो ये चीज हम लोग को चाहिए प्रोसेसिंग यूनिट में। और दूसरा हमें चाहिए कि जैसे एक ग्रीन इकोनॉमी वगैरह में खासकर जो है क्लाइमेट को देखते हुए क्या कुछ ऐसे एफपीओज हैं जो साझा कर सकते हैं कि कुछ इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज वगैरह इनकॉर्पोरेट किए हुए जो कर रहे हैं खासकर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को लेते हुए। ये दो दो चीज मेजरली जो है हम लोग भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक बहुत कुछ कर नहीं पा रहे हैं पिछले 2 साल से, जो खासकर लाइट हाउस एफपीओज में वॉलमार्ट की फंडिंग से जो काम कर रहे हैं। तो ये दो मेजर चीज थी खासकर प्रोसेसिंग यूनिट को लेके, कि एक सिस्टम एस्टेब्लिशमेंट क्या होनी चाहिए, और दूसरा क्लाइमेट ग्रीन इकोनॉमी को लेके कुछ उस तरह का हो तो जरूर जाना चाहिए। जी थैंक यू। थैंक यू। महफूज जी ने जिस तरह से जोड़ा, मैं कुछ चीज़ें और आपको थोड़ा सा जोड़ना चाह रहा था कि हमारे जो मध्य प्रदेश के कुछ एफपीओज हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है। खासतौर से जो पेटलावत के एफपीओज हैं, उन्होंने भी जो स्वीट कॉर्न को लेके और कुछ कुछ और चीज़ों को लेके भी यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है, जो काफ़ी अच्छा सक्सेस रहा है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा बताएं। और साथ में एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जो हमारे लाइट हाउस एफपीओज हैं और बाकी जो महिलाओं के एफपीओज हैं, उनको मिला के एक स्टेट लेवल फेडरेशन का फॉर्मेशन भी वहाँ पे हो चुका है। और बाकायदा रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो भी अपने एक बिजनेस को इनिशिएट करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो एक तरह से एक पूरा स्ट्रक्चर हम लोगों का वहाँ पे, हम लोग मतलब महिलाओं किसानों का एक तो वहाँ पे तैयार हो चुका है, जो उत्तर प्रदेश में भी। और सेम इसी तरह से हम लोग यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी ये आगे बढ़े। तो मध्य प्रदेश, और इसके अलावा जो हमारे जैसे असम के साथी जुड़े हैं, वो असम के बारे में बताएंगे, वहाँ पे भी इस तरह से एफपीओ है, झारखंड में भी है, और ये और छत्तीसगढ़ में, ये सभी स्टेट में इस तरह से हम लोग यहाँ पे बाकी साथियों से भी रिक्वेस्ट रहेगा कि थोड़ा सा और बताएं। मेरे खासतौर से मध्य प्रदेश के जो हमारे साथी जुड़े हैं, हमारे टीआरए से वर्धमान हैं, उनसे रिक्वेस्ट है। और साथ में उनके साथ बाकी एफपीओज के जो सीईओज हैं, वो भी थोड़ा सा और बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने इन महिला एफपीओ के माध्यम से
अच्छा टर्नओवर किया है और एक अच्छी पहचान बना स्थापित करने की कोशिश की है। वर्धमान जी, आप सुन रहे हैं ना? जी। जी। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ, आवाज आ रही सर? जी, सुन रहा हूँ। हाँ, थोड़ा आप सर, बताइए वर्धमान जी। यस सर। जी, सभी को नमस्ते। मेरा नाम वर्धमान जादव है। मैं भी टीआरआई फाउंडेशन पेटला पेटला ब्लॉक में एसोसिएट प्रैक्टिशनर के पद पर हूँ। जैसा कि अभी सर ने बताया है कि यहाँ पे झावा के भी जो एफपीओज हैं, इसके अलावा और भी एफपीओज जो काम कर रहे हैं। तो इसमें अभी जो एफपीओ के माध्यम से, जैसे सर ने बताया कि स्वीट कॉर्न हमारे जो थानला, पेटलावत और ये जो पेटलावत में जो एफपीओज है, कृष्ण भगवान एफपीसी करके और शिशिवाई करके, और साथ ही थानला और खवासा में 2 एफपीओ है, सबरी माता और समूह माता करके। तो इन एफपीओज के माध्यम से भी पिछले 2 साल से स्वीट कॉर्न के ऊपर भी ये जो सीड एफपीसी की तरफ से प्रोवाइड फार्मर्स को कराया जा रहा है। और उसके बाद में जो भुट्टा निकलता है, हरा भुट्टा, उसको बाईबैक करके एक मालो फ्रोजन कंपनी उसको सप्लाई किया जा रहा है। और साथ ही स्वीट कॉर्न के साथ मैरीगोल्ड्स पे भी काम कर रहे हैं। मैरीगोल्ड में भी सीड प्रोवाइड करा देते हैं और वापस जो फूल निकलता है, फ्लावर, उसको भी बाईबैक करके उस फूल को एक ओमनी एक्टिव करके कर्नाटक की कंपनी है, उसको सप्लाई करते हैं। तो वो कंपनी जो है फूल का एक्सट्रैक्ट निकाल के जो आई ड्रॉप्स बनाते हैं उसमें काम लेती है, जो कि आई ड्रॉप्स बना के उसको एक्सपोर्ट करती है कंपनी ओमनी एक्टिव। ये भी काम कर रहे हैं। साथ ही लास्ट ईयर अभी जो पिछली सीजन गई उसमें जो एफपीसी के माध्यम से, जो श्री शिवा एफपीसी के माध्यम से मंदसौर यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट में अलसी का भी अलसी का जो एक्स्ट्रा रहता है डंठल, उसका भी खरीदी बिक्री किया गया था, जो कि एक कंपनी जो सूरत की कंपनी है, वहाँ पे सप्लाई किया गया था कैनवा लुक करके। और साथ ही यहाँ पे जो एफपीसी के माध्यम से यहाँ पे सभी तरह के लाइसेंस भी लिए गए हैं। सीड का लाइसेंस भी है सभी एफपीसी के पास में, फर्टिलाइजर का लाइसेंस, पेस्टिसाइड का लाइसेंस, साथ ही मंडी का लाइसेंस है, और सब्जी खरीदी बिक्री के लाइसेंस भी सभी एफपीसी ने अपने अपने बना रखे हैं। और साथ ही सीड जो सीजन वाइज जो सीजन रहता है, खरीफ सीजन, रवि सीजन में और जायद की सीजन में भी, तीनों सीजन में जो सीड फार्मर्स जो जितने शेयर होल्डर बना रखे सभी को सीड सप्लाई भी करते हैं। और सीड सप्लाई के साथ साथ में भी ड्रिप मल्चिंग और ये स्प्रे पंप का भी, ये भी फार्मर्स को एफपीसी के माध्यम से सेल किया जाता है। साथ ही मार्केट लिंकेज में भी ये जो सीजन के बाद में जो ग्रेन रहता है, अनाज खेती बिक्री में रहता है, जैसे सोयाबीन निकलता है, गेहूं निकलता है, तो ये भी एफपीसी के माध्यम से खरीद के जो ट्रेडर्स रहते हैं, बायर, उनको सप्लाई किया जाता है। और अनाज खरीदी बिक्री साथ साथ में, साथ ही ये जो मार्केट लिंकेज में ओमनी एक्टिव और मालवा फ्रोजन, ये जो कंपनियां हैं और लोकल जो ट्रेडर्स हैं जो अनाज खरीदी बिक्री का, उनसे भी सीजन वाइज एफपीसी के द्वारा मीटिंग करके और एक बायर सेलर मीटिंग भी की जाती है, जिसके माध्यम से हम लोग ये सभी मार्केट्स में बायर से कांटेक्ट में रहते हैं। और साथ ही थोड़ा ये लग रहा है हमको, जैसे जो काम कर रहे हैं तो उसमें एक तो जैसे कि अभी लास्ट ईयर हम लोगों ने ये किया था लिनसीड का जो खरीदी बिक्री किया था एक्स्ट्रा का, तो उसमें काफी प्रॉब्लम आई थी। इसमें हम लोगों को थोड़ी ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो मशीनरी में चाहिए थी, मशीन में जैसे हम लोग चाहिए था, इसमें बैलर मशीन जो कि एक ही थी, बैलर मशीन की थोड़ी आवश्यकता लग रही थी। बैलर मशीन हो गया, ट्रैक्टर और ट्रॉली हो गया, साथ में प्रेसिंग मशीन, हार्वेस्टर, ये सभी खरीदी बिक्री की लगभग आवश्यकता है इसमें। और साथ ही अगर मान लीजिए हम लोगों को ट्रेनिंग तो चाहिए ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, अगर मान लीजिए काम कर रहे हैं तो उसको और अच्छे से कर तो रहे हैं, लेकिन और बेहतर तरीके से किया जाए तो उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग मिल जाती है और अच्छा रहेगा। साथ ही कुछ एफपीसी के माध्यम से हम लोग का प्लान चल रहा है कि कुछ ऑयल मशीन, जैसे कि यहाँ पे ये मूंगफली निकलता है, तेल निकलता है, सरसों भी कई जगह होता है, अभी सरसों भी फार्मर्स लगा चालू किए हैं, तो इसमें काफी डिमांड भी है ऑयल की, जो तो उसमें भी हम लोगों की ऑयल मशीन भी लगाने का कुछ एफपीसी के माध्यम से चल रहा है कि। और साथ ही यहाँ पे गेहूं काफी मात्रा में होता है, तो आटे की डिमांड भी काफी है यहाँ पे, तो उसके लिए भी हमको लगभग एक आटे की मशीन भी कुछ एफपीसी में लगाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आटे की मशीन की डिमांड है एफपीसी के माध्यम से। और अगर मान लीजिए हम लोग ये ऑयल मशीन लगा रहे हैं या फिर आटा पैकिंग कर रहे हैं, तो इन मशीनों में क्या है कि पैकेजिंग काफी महत्वपूर्ण ये चाहिए। अगर पैकेजिंग अच्छी हो तो मार्केटिंग भी अच्छी हो सकती है, तो इसके लिए पैकेजिंग मशीन अगर कहीं अगर मिल सके
तो ये भी डिमांड है एफपीसी के माध्यम से भी हम लोग काम कर रहे हैं। और ठीक सर, ये इतना है। बाकी का हमारे सीओ लोग भी जुड़े हुए हैं इसमें। करण और गुलशन, प्रताप, आप भी कुछ बता सकते हैं। अगर कुछ आप लोग नया करना चाह रहे हैं, उसमें कुछ डिमांड हो मशीनरी की, तो आप लोग भी अपनी तरफ से बता सकते हैं। करण, गुलशन, शांतिलाल, प्रताप। नमस्कार सभी को। मेरा नाम करण राठौर है और मैं श्री शिव शिवाय महिला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड बामनिया में सीईओ के पद पे काम कर रहा हूँ। तो जैसा कि हमारी एफपीसी के जितने भी मैक्सिमम काम है वो सारे लगभग तो वर्धमान सर ने बता ही दिए हैं आप सभी को। मैं उसमें थोड़ा सा कुछ ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारी स्टार्टिंग में हमारी जो कंपनी बनी थी उसमें हम लोग स्टार्टिंग में तो सीड परचेस का ही काम कर, मतलब सीड परचेस और सेल का ही काम कर रहे थे और ग्रेन वगैरह का काम कर रहे थे। फिर उसके बाद मेरीगोल्ड का जब स्टार्ट हुआ तो हम लोगों ने लगभग मतलब 200 फार्मर्स से कांटेक्ट करके उनको सीड सप्लाई किया, ओमनीएक्टिव का जो सीड था वो, और लगभग 600 क्विंटल के आसपास हम लोगों ने उनसे फ्लावर परचेज किया पूरे सीजन में। और बीच में मतलब सीजन का जितना भी टाइम था, मतलब सीड सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक का जितना भी उनको फार्मर्स को सपोर्ट लगता था, टेक्निकल सपोर्ट, तो वो सारा हम लोगों ने दिया कि कब उसकी सोइंग करना है, कैसे उसमें अर्थिंग अप करना है, निपिंग कैसे करना है, वो सारी चीज़ें बेसिकली वो सारी चीज़ें हम लोगों ने उनको अवेलेबल कराई थी। फिर उसके बाद जो स्वीट कॉर्न था, तो स्वीट कॉर्न में भी हम लोगों ने लगभग 350 क्विंटल के आसपास स्वीट कॉर्न परचेज किया फार्मर से। सीड उनको हम लोगों ने ही सप्लाई किया था। और उसके बाद जो लीन सीड की बात है, अभी लास्ट सीजन में जायद के सीजन में हम लोगों ने लीन सीड का जो काम किया था मंदसौर और नीमच के एरियाज में, तो उधर लगभग हम लोगों ने मतलब 150 फार्मर्स से कांटेक्ट किया। स्टार्टिंग में उनसे कांटेक्ट करके ये वर्धमान सर और अंकित सर टीआरआई के हेल्प से ये वाला काम हम लोगों ने किया था। तो उसमें लगभग 150 फार्मर से हम लोगों ने कांटेक्ट किया और उन सभी से जो लीन सीड के स्टो थे वो लगभग 1475 क्विंटल हम लोगों ने खरीदी का काम किया। तो लगभग वो मोटा मोटी 20 लाख के आसपास का टर्नओवर जो हमारे 2 महीने के आसपास हुआ, 2-2.5 महीने के आसपास। तो ये सारा काम हुआ। अभी जैसे लिंसिड वाला है तो हम लोग चाहेंगे कि नेक्स्ट ईयर भी हम लोग ये वाला काम करें और थोड़ा सा स्टार्ट से, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टाइम था तो लगभग 20 लाख का ही टर्नओवर हो पाया। तो अगली बार थोड़ा और वेल प्रिपेयर होके थोड़ा अच्छे बड़े लेवल पर इसको करने की हम लोग कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा बताया आपने। तो यहाँ पे एक पॉज लेके अपने एग्जिम बैंक की टीम से भी पूछते हैं, उनके कुछ सवाल हैं। यही जानकारी आप जानना चाह रहे थे या कुछ और हम बताएं एफपीओ के बारे में जो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा? तो एनी व्यूज फ्रॉम एग्जिम बैंक? हेलो, रविदास here. हाँ जी हेलो, रविदास जी बताइए। यस सर, सुनाई गो दे रहा हूँ अहेड। मैम? सुनाई दे रहा हूँ? यस सर। हाँ सर आई थिंक किसी का माइक ऑन है लगता है। अब म्यूट हो गए आप, यू ओके कैन गो अहेड। ओके, इट्स अ गुड, अच्छा इंफॉर्मेशन है। हम भी ऐसे एफपीओ एस्टेब्लिश्ड एफपीओ मतलब बिल्कुल बेसिक्स है ना, हमारा एलिजिबिलिटी में नहीं आएंगे वो। एटलीस्ट उनका 3 इयर्स का ऑपरेशन होनी चाहिए, 3 ईयर का बैलेंस शीट होनी चाहिए। एंड जहाँ पे रियली और उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया है, एक स्टेज तक लेके आए हैं, फर्दर डेवलपमेंट के लिए कुछ हेल्प चाहिए उनको। जैसे वो बता रहते हैं कि लाइट हाउस, इनके लिए कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज शेयरिंग। आई थिंक उनका जो रिक्वायरमेंट था नॉलेज शेयरिंग था। एक कंपनी चला एफपीओ चलाने के लिए क्या क्या फैसिलिटी, प्रोसेस पूरा कैसा चलाया जाता है, एक एफपीसी पूरा प्रोसेस जानना चाहते हैं। तो इट्स अ गुड एटीट्यूड। तो उससे पहले जब हम डिस्कस करेंगे हमको देखना पड़ उनके पास करेंटली क्या क्या फैसिलिटीज हैं, कितने क्वालिफाइड वर्कफोर्स है, उनको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। वो कंपनी सब कुछ है लेकिन चलाने में दिक्कत आ रहा है उनको। अगर प्रॉपरली सीएफओ की मतलब अकाउंट का बंदा चाहिए या अकाउंट के लिए कोई दे वांट टू कंप्यूटराइज इट, अगर
कंप्यूटराइज करना चाहते हैं, उनका जो भी गैप है उसको आइडेंटिफाई करके हम रिलेटेड या तो नॉलेज सब्जेक्ट एक्सपर्ट को ढूंढ के ट्रेनिंग दे सकते हैं, या उनको प्रॉपरली चलाने के लिए कुछ फैसिलिटीज सिस्टम्स चाहिए। अगर मार्केट में रेडीमेड छोटे कंपनीज के लिए कोई सिस्टम ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके इस्तेमाल करके वो लोग और अच्छा कर सकते हैं, तो वो भी हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर आपको वो प्रोवाइड करके उसका प्रॉपर ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। रिगार्डिंग दूसरा उनका क्वेश्चन था सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन फार्मिंग, वो क्लैरिटी नहीं मिला हमको, वो क्या बोलना चाह रहे थे, मतलब दे आर वेदर ही वाज टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी और वैगरीज ऑफ द वेदर, वेदर की वजह से वो प्रॉपर ये नहीं कर सकते। आजकल ग्रीन हाउस पे होते हैं ना प्रोटेक्टेड, ये भी होता है, उसके बारे में जानना चाहते हैं। हेलो। यस रविदास जी, आई थिंक आपका जो पॉइंट है कि जो सपोर्ट चाहिए उस पे और क्लैरिटी लाना हाँ ना, पड़ेगा, क्लैरिटी और क्या है ना, हाँ, वो बिकॉज अभी क्या नेक्स्ट आता है, स्टेप रहेगा कि डिटेल एफपीओ में। एफपीसी जो भी है, करंट क्या पोजीशन में है, उनके पास क्या क्या फैसिलिटीज है, उनके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, और गैप्स क्या है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास दो तीन गैप्स है, हम पूरे के पूरे भी नहीं कर पाएंगे, बट मोस्ट क्रिटिकल हम कर पाएंगे, तो उस पर फोकस करेंगे पहली बार। वो एड्रेस करने के बाद सेकंड गैप में जा सकते हैं, या पार्टली वो खुद अटेंड कर सकते हैं, पार्टली हम अटेंड कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। हम्म। जैसे मार्केटिंग, वो बता रहे थे कि 2 करोड़ का टारगेट अचीव किए, अगर उनमें भी कुछ गैप्स है, ये फैसिलिटी अगर हमको मिल सकेगा एक कॉमन फैसिलिटी पे, और हम और अच्छा कर सकते हैं, तो ये जो भी सीईओ या जो भी आपके टीआरआई से जो कोऑर्डिनेट करते हैं ना सर, तो वो आइडेंटिफाई करके हमको बता सकते हैं। देन वील सिट विद देम, उनके साथ बैठ के हम डिस्कस करेंगे, उनके लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम डिजाइन करेंगे हम। इंटरवेंशन प्रोग्राम कैसा रहेगा, फॉर एग्जाम्पल आप 2-3 एफपीओ से बात किया, सभी का रिक्वायरमेंट कुछ अलग अलग है, तो हम उस हिसाब से अंडरस्टैंड करके उनका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एड्रेस करने का कोशिश करेंगे। या संदीप जी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, थैंक यू, समझ गया। अ, कमेंट करने की मेरा कुछ। क्या, आई होप आई एम क्लियर, मतलब यस सर। सभी एफपीओ सेम नहीं है सर, अलग अलग एक्टिविटी है, अलग अलग प्रोड्यूस है उनका, जी। तो उनके अलग अलग एडवांटेज है, तो अलग अलग डिसएडवांटेज भी है, डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया में है। जी। सिंपल देता हूँ सर मैं, हम इस ग्रिड के अंदर हमने किस लेवल तक हमको हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली हम एक इंडस्ट्री क्लस्टर को हमने 3D स्कैनर दिया, इट्स वेरी हाईटेक 3D स्कैनर एंड सिमुलेशन फैसिलिटी दिया उनको। उसी हिसाब से कहीं जाके तो कुछ कंपनीज को हम लोग बोरवेल को सोलराइज कर दिया, इट्स वेरी बेसिक। बोरवेल है, उनको सोलर फैसिलिटी दे दिया हमने, इट इज वेरी बेसिक। तो एफपीओ का जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है होता है, एसपीओ इन द सेंस नॉट ओनली एफपीओ, एफपीसी भी हो सकता है, सोसाइटी हो सकता है, क्लस्टर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उस लेवल पे जाके उनका इश्यू समझ के हम अपना जो इंटरवेंशन प्रोग्राम ने डिजाइन करके हेल्प कर सकते हैं इन कोलैबोरेशन। ऐसे नहीं कि हम एक टारगेट अचीव करना है ये दे दिया, ऐसा नहीं है। पहले आपके साथ बैठ के हम समझेंगे। जरूरी आपके पास जैसे 300 एफपीओज बता रहे थे अभी टुडेज मीटिंग, तो जरूरी नहीं सभी एलिजिबल हो जाए हमारे लिए। जब तक हम बैठेंगे नहीं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं करेंगे, हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। बट एक ही चीज बोल सकता हूँ, हाँ, जैसे मैंने बोला बोरवेल डालने से लेके हाईटेक 3D सिमुलेशन तक हम इसमें हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल और एक जगह एक गणेशा प्लीज कम इन, कौन सा राइस वाला जहाँ पे हमने ड्रोन दिया है, हाँ सर, ये गणेश, रायपुर डिस्ट्रिक्ट में है। हाँ वो एक्सप्लेन कर दीजिए इनको, तो एक आइडिया मिल जाएगा हमारा रेंज ऑफ सपोर्ट। तो वहाँ पे एक एफपीओ है, वो टोटली वुमेन बेस्ड एफपीओ है राइस फार्मर्स के लिए। बिहान प्रगतिशील महिला महिला एफपीओ करके। तो उनको राइस के फील्ड में जब
बहुत ज़्यादा पानी वगैरह भरा रहता है, तो उनको टाइम पे पेस्टिसाइड और ये फर्टिलाइजर वगैरह स्प्रे करने में दिक्कत होता है मैनुअली मशीन से। तो उसके लिए उनको एग्रीकल्चर ड्रोन दिया और जब अभी वो नॉर्मली जैसे ही पैडी वो निकालते हैं हार्वेस्ट करते हैं वैसा बेच देते, तो उनको कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता। तो उनको एक स्मॉल स्केल का राइस मिल यूनिट सेटअप करा के दिया हमने, और उनको ड्रोन के लिए भी ट्रेनिंग दिलाया, उनका ड्रोन पायलट का लाइसेंस के लिए भी सपोर्ट किया, और फार्मिंग से राइस का कैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और गुड फार्मिंग प्रैक्टिसेस, इस पे भी हमने उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिलाया है। तो हमारा जो भी सपोर्ट है वो ऐसे ओपन है, किसी एक चीज़ को लेके रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि हम यही देंगे वही नहीं देंगे। बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेट होना चाहिए और सबका कॉमन फायदे के लिए होना चाहिए। सिर्फ किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं हम कर सकते कि वो सिर्फ एक या दो लोगों को बेनिफिट होगा। कोई भी फैसिलिटी क्रिएट होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा मिलना चाहिए। ये सही बात आपने बोली गणेशा, थैंक यू। रंजन जी, बीच में आपका मैंने शायद कोई पॉइंट देखा था। डू यू वांट टू शेयर फ्रॉम असम? Yes, yes, yes. Uh, Thank you, Ganesha ji, Silvi ji, and बॉटम और आप लोग एग्जिम बैंक से जितने लोग हैं, आप रविदास जी। तो पहली बात यह है कि आसाम में हमने जो देखा है कई सारा ऐसा प्रोडक्ट है, क्योंकि एग्जिम बैंक का जो इनिशिएटिव है बेसिकली आपका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट के ऊपर काम करने का जो है। तो हम लोग असम में जो टीआरआई से एक एरिया में काम करते हैं, इसको बीटीसी बोलते हैं, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। वहाँ पे 5 डिस्ट्रिक्ट है, और उस 5 डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों का वीमेन एफपीसीज ऑलमोस्ट 19 वीमेन एफपीसीज है, और उसका एक हमने स्टेट फेडरेशन भी बनाया है। तो फेडरेशन का ऐसा अभी मतलब नया है, रजिस्टर किए हुए, बिजनेस हुआ नहीं है। बट जो है एफपीओ भी है, छोटे छोटे है। हम लोग आसाम में मेन क्रॉप है राइस। राइस का भी कई सारा वेराइटीज है। तो बेसिकली राइस के ऊपर कई सारा एफपीसी ने कलेक्शन करके एग्रीगेशन करके उसको सेल किया है इस साल। मतलब क्वांटिटी कम है बट आगे उसको और बढ़ाएंगे। हमने जो उसको देखा था एक्सपोर्ट के लिए असम से कुछ प्रोडक्ट जैसे है, राइस में भी आपका जैसे एक एरोमेटिक राइस बोल के है, जवाहर राइस है, फिर एक ब्लैक राइस है, और एक आपका माने रेड राइस है। इस 3 राइस का अच्छा मतलब डिमांड है एक्सपोर्ट मार्केट। हमने कुछ एक्सपोर्टर्स से भी बात किए थे। बट आज के दिन में जो हमारा एक वॉल्यूम होना चाहिए, एक एक्सपोर्ट के लिए जितना क्वांटिटी होना चाहिए, एफपीओ उतना क्वांटिटी में मतलब आज के दिन में प्रोड्यूस नहीं कर पाया। तो उसके लिए हमने क्लस्टर डिजाइन करके कैसे मतलब उसको बड़ा क्वांटिटी में कर सकते हैं, काफी अवेयरनेस हम कर रहे हैं। तो उस दिशा में हम लोग थोड़ा सा काम कर सकते हैं कि जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट असम से होता है, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट बोल के है असम से, हम लोग एटलीस्ट जिस एरिया में हमारा काम है, एक डिस्ट्रिक्ट है तामुलपुर और बाक्सा, 2 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का हनी का काम है। मतलब हनी एक प्रोडक्ट है जो ओटीओपी है, उसका भी वो है। कोकराझार बोल के एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे मशरूम का अच्छा मार्केट है। फिर सिरांग बोल के एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें आसाम लेमन है। आसाम लेमन का अच्छा एक्सपोर्ट होता है यूरोप में और कई जगह। आज के दिन में इंडिविजुअल मतलब कोई एंटरप्रेन्योर कर रहा है, बट एफपीओ लेवल पे उसको कलेक्ट करके एग्रीगेट करके वो हुआ नहीं। वो हम लोग अभी उसको अवेयरनेस कर रहे हैं। इवन हमने लास्ट एपेरा के साथ भी ये सब किए थे। बट इशू इज दैट कि आज के दिन में देखा जाए तो इंडिविजुअली एक एक एफपीसी थोड़ा सा उस वॉल्यूम पे अब नहीं आ पाएगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पे जो फेडरेशन बनाया है, उस फेडरेशन से हम कुछ ऐसा मतलब एग्जिम बैंक के साथ टाई अप कर सकते हैं। तो 500 डिस्ट्रिक्ट में हम कुछ एग्रीगेशन कर सकते हैं। और इवन अभी सोता सोता है, क्योंकि एफपीसी एफपीसी और यहाँ पे कई सारा कुछ मशीनरीज वगैरह भी जरूरत है। मान लीजिए मशरूम से मशरूम ड्रायर मशीन ही जरूरत है। मान लो तुरंत रॉ मशरूम नहीं सेल कर पाया, तो उसको ड्राई करके अच्छा पैकेजिंग किया। तो कुछ ऐसा पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग कुछ मशीनरीज का जरूरत हो सकता है हर एक एफपीसी में। फिर आसाम लेमन का क्या है, लेमन को जो एक्सपोर्ट करने में जो तकलीफ आता है, बेसिकली हमने जो देखा है, जो ग्रीन लेमन होता है उसको हो जाता है। मतलब ग्रीन लेमन को कुछ दिन
दिन एक ये हो जाता है, तो उस ग्रीन लेमन से कैसे लेमन जूस बना के स्टोर कर सकते हैं उसके ऊपर हम, या इवन लेमन जूस का भी एक्सपोर्ट करने का कोई पोटेंशियल है, तो हम एक्सिम बैंक के साथ कैसे फेडरेशन लेवल पे सारा एक्सपोर्ट प्रोडक्ट मतलब इस रीजन से ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहा है, पर उसको हम कैसे अपना एफपीओ या अपना फेडरेशन को उसको बेनिफिट मिले, उसको कैसे कलेक्शन एग्रीगेशन कर सकते हैं, उसमें एक जॉइंट इनिशिएटिव डेफिनेटली हम एक्सिम बैंक के साथ कर सकते हैं। थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वर्तमान जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी मैम। मैं ये बोलना चाह रहा था मैम कि जैसे मंदसौर और नीमच डिस्ट्रिक्ट में टोटल, जैसे लास्ट ईयर हम लोगों ने अलसी जो परचेज किया था, अलसी का लिनसीड जो एक्स्ट्रा होता है, तो उसमें मंदसौर नीमच डिस्ट्रिक्ट में लगभग 40,000 हेक्टेयर के समथिंग ये पूरा अलसी लिनसीड लगता है। तो उसमें प्रोडक्शन अगर केवल एक्स्ट्रा की बात करें तो लगभग 8 to 10 लाख क्विंटल्स टोटल लिनसीड एक्स्ट्रा निकलता है। तो उसमें लास्ट ईयर हम लोगों ने परचेज किया था, काफी मशीनरी में बहुत दिक्कत आई, मशीन से टाइमली मशीनरी नहीं मिल पाई। तो इसमें अगर हम लोगों को जैसे बैलर मशीन, अगर बैलर मशीन है, ट्रैक्टर ट्रॉली हो गई, पैसिंग मशीन और हार्वेस्टर, अगर ये मशीनरी अगर मिल जाती है तो हम लोग काफी अच्छे से वहाँ पे ये काम कर सकते हैं। और ताकि जिससे कि क्या है कि जो किसान जो डंठल जला देते हैं वहाँ पे, है ना, तो इस बार जो जहां जहां हम लोगों ने खरीदी की थी तो वहां पे किसानों ने बिल्कुल भी डंठलों को जलाया नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी बैन लगा रखा था। तो काफी किसानों को मुनाफा हुआ है, और किसान भी वहाँ पे काफी किसान, जैसे हम लोगों ने कम मात्रा में किया, 2,000 क्विंटल समथिंग लिया था, लेकिन काफी किसानों को हम लोग फोन आए और अभी भी बोल रहे हैं कि सर लास्ट ईयर हम लोगों ने ज्यादा ज्यादा अलसी लगाएंगे। कारण क्या है कि अगर मान लीजिए हम लोग जो डंठल, हमको जो पैसा नहीं मिल पा रहा, अगर आप लोग खरीदते हैं तो हमको ज्यादा पैसा मिल जाएगा इससे। तो इस साल सुना है कि ये डंठल जो हम लोगों ने खरीदा, उससे क्या है कि जो अलसी का जो एरिया है वो भी काफी मात्रा में बढ़ रहा है वहाँ पे। तो अगर मशीनरी मिल जाती है तो काफी मदद रहेगी, ज्यादा से ज्यादा किसानों को फायदा होगा और हम लोग भी अच्छे से काम कर पाएंगे वहाँ पे। जी, थैंक यू वर्धमान जी। विकास जी, आपको कुछ कहना है? मैं यही कह रहा था कि हमारा जैसे अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट का जो सोंडवा ब्लॉक है, वहाँ पे हमारा बायरा अलीराजपुर प्रोड्यूसर कंपनी जो है, तो वो अभी मिलेट्स को लेके स्पेशली काम करती है। तो अभी हम वहीं पर लोकल लेवल पर ही जो दीदियाँ अपनी परंपरागत मेथड से प्रोसेसिंग करती है, उसी से बनाए हुए उत्पादों को हम अपने पास पास का, जैसे इंदौर का मार्केट है, वहां तक बेचते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यदि वहां पर ऐसा बाजरा प्रोसेसिंग यूनिट या इस तरीके का एस्टेब्लिश करके भी हम वहां पे, क्योंकि मिलेट्स का स्कोप है और मिलेट्स का प्रोडक्शन होता ही है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो हम यहाँ पर मिलेट्स की प्रोसेसिंग यूनिट भी स्टेब्लिश कर सकते हैं। और साथ ही साथ मेरा कहना था कि जैसे इस प्रोजेक्ट के थ्रू क्या कस्टम हायरिंग सेंटर जो है, जिसमें मिनी टाइप के जो इक्विपमेंट है, वो यदि इसमें मिल सकते हैं क्या, ताकि एफपीसी एक सस्टेनेबल मोड पे भी आ सके और अपना एग्जिम रेवेन्यू भी जनरेट कर सके। करेक्ट, करेक्ट। एग्जिम बैंक से कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? हाँ विकास जी, आप कुछ कह रहे थे, क्या मशीन बता रहे थे आप, किस किस लेवल पे चाहिए आपको? जैसे बाजरा की प्रोसेसिंग यूनिट हो जाए इस तरीके का, लगभग ओके। 5-6 लाख की कॉस्ट में आती है वो। हम्म। और दूसरा मेरा ये था कि यदि एफपीसी के लेवल पे कस्टम हायरिंग सेंटर एस्टेब्लिश करने के लिए यदि ग्रांट मिल सकती है, ताकि हम एफपीसी का भी खुद का एक रेवेन्यू स्टार्ट हो जाए। और चूंकि यहाँ पर बहुत ही छोटी लैंड होल्डिंग पैटर्न है, लगभग 1.5 से 2 एकड़ जमीन है, तो ओके। इस तरीके के मिनी इक्विपमेंट्स के थ्रू, मिनी ट्रैक्टर्स या इस तरीके का मिनी वाला कस्टम हायरिंग सेंटर एस्टेब्लिश करके उनको सर्विसेज प्रोवाइड करा के, एफपीसी एज अ सर्विस। कस्टम हायर इन द सेंस, मतलब जो भी लैंड होल्डर्स है आपके पास आके फैसिलिटी, मतलब ये हायर करके जाएंगे, हाँ, एफपीसी उनको सर्विस प्रोवाइड कराएगा। मतलब फॉर उनको ट्रैक्टर, मिनी ट्रैक्टर चाहिए तो हाँ एफपीसी ओन करेगा। जो भी हाँ मेंबर से यूटिलाइज करना चाहते हो यूटिलाइज कर लेंगे। हाँ, कर सकते हैं। है ना। कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। उसका एक सिस्टम है, हमारा प्रोसीजर है, उसका यूटिलाइजेशन कैसा ट्रैक किया जाता है, उसका लॉग, आपको एफपीसी को बहुत सारा काम करना पड़ेगा। हाँ हाँ, बेनिफिशियरी कितने लोग हैं, कितना यूज हुआ, क्या क्या चार्ज कर रहे हैं वो, बिकॉज हम सपोर्ट कर रहे हैं तो हमको भी गवर्नमेंट को रिपोर्ट देना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। उससे कितने लोग बेनिफिट मिल गया उनको। ठीक है।
वो सभी करना पड़ेगा, बट ये आप जो पूछा कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। बहुत बढ़िया। ये तो हमें मान के ही चलना पड़ेगा कि जिस भी आइडिया के लिए हमें ग्रांट मिलेगा उसका डिसिप्लिन तो फॉलो करना है सबको ही। एंड इस कॉल पे जितने रिप्रेजेंटेटिव्स एफपीओस के, उनको ये एक्चुअली में बात काफी अच्छे से पता है, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन वो ऑलरेडी ट्रैक करते हैं अपने मेंबर्स का, लैंड होल्डिंग का, प्रोड्यूस का, और इनके ऑफिसेस में जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी है। तो that is one of the reasons why we have selected these FPOs today for this call. तो ये तो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक छेड़ा आपने रविदास जी। ये डिसिप्लिन और जो डेटा रिपोर्टिंग होगा उस ग्रांट को कैसे यूटिलाइज किया जा रहा है वो बहुत जरूरी है। और यस, मैं अपने सारे एफपीओ साथियों से भी यही रीइंफोर्स करूंगी कि आप अपना सारा डेटा का काम बहुत ही रिगरसली जारी रखिएगा। हाँ, प्रॉपर हाउसकीपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी होता है, करेक्ट। बिकॉज सभी लोग जवाबदेही है ना मैम। हम जब ग्रांट दे रहे हैं, पब्लिक का मनी यूज करके आपको ग्रांट दे रहे हैं, तो जवाब तो देना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को, कंट्रोलिंग ऑफिस से। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। Yeah. ओके, अभी अपने पास वन मोर थिंग मैडम, जस्ट जैसे मैं या बता रहा था, जवाबदेही होती है, डिसिप्लिन जरूरी है। नॉर्मली हम लोग जो प्रोजेक्ट सपोर्ट करते हैं ना, उसका एक मॉनिटरिंग भी करते हैं 3 साल तक। नॉर्मली 3 साल तक करते हैं, 2 से 3 साल तक करते हैं एक्टिविटी बेस्ड। तो जैसे हमने जो टारगेट किया था, ये इंटरवेंशन प्रोग्राम देते हैं तो इतना बेनिफिट इनको मिलना चाहिए। शुरू में हम डिसाइड करते हैं कि इतना मिलना चाहिए। पहले 10 रुपए का कमाई होता था, तो हमारे इंटरवेंशन और बेनिफिट की वजह से 12 रुपए का कमाई होगा। सो सिंपल पर हेड। तो उसको हम ट्रैक करते रहेंगे मॉनिटरिंग के टाइम पे। उसके बाद जैसे हमारा मॉनिटरिंग टाइम खत्म हो जाता है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, उसके बाद एक इम्पैक्ट एनालिसिस करते हैं। हमने जो जो सोच के हमने जो भी फैसिलिटी दिया था, जो भी मदद किया था है, उसका पूरा जो टारगेट था, जो भी हमने सोच के दिया था, वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, वो भी करते हैं हम लोग। इम्पैक्ट एनालिसिस के बाद हमको लगता है नहीं और कुछ कमी है, तो फिर उस पर हम सोचते हैं कि और एडिशनल देना है नहीं देना है। तो उस लेवल तक हम लोग ट्रैक करते हैं। ओके ओके। सो अब 2 मिनट बचे कॉल के। मैं सोच रही थी नेक्स्ट स्टेप्स और टाइमलाइंस की थोड़ी बात करते हैं। तो रविदास जी, आप एज अ नेक्स्ट स्टेप एफपीओस जो सबमिट करेंगे आपको इंफॉर्मेशन, उसमें क्या क्या होना चाहिए, अगर थोड़ा गाइडेंस दे सकते हैं तो। हाँ, एक काम करते हैं मैडम, मैंने आई थिंक विजय से मैंने शेयर किया था, फिर भी एक काम करते हैं हम लोग। एक जनरल बेसिक इंफॉर्मेशन जो चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए, हमको जस्ट एलिजिबल है या नहीं है चेक करने के लिए। वंस वो हो जाएगा तो फिर हम फर्दर इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि पर्टिकुलर एफपीओ या एंटिटी रिलेटेड क्या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमको चाहिए, वो शेयर करेंगे। बट जनरली हमको क्या चाहिए, हम क्या क्या देखते हैं, उसके जनरल एक लिस्ट है हमारे पास। अगर इन सभी लोगों का अगर ईमेल आईडी शेयर करेंगे तो एक कॉमन मेल बना के सबको शेयर कर देंगे, या आपको भेजेंगे तो यू कैन शेयर विद देम। गणेशा गणेशा एक काम करो, फॉर देयर अंडरस्टैंडिंग नो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास लिस्ट है ना, वो बता दीजिए। जैसे फॉर्मेशन बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट, उनके सर्टिफिकेट, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, बैलेंस शीट, लिस्ट ऑफ मेंबर, मैनेजमेंट, वो सीईओ हु इज मैनेजिंग दिस एफपीओ, कितना ओल्ड है, वो सभी जब बता दीजिए, उनको एक आइडिया मिल जाएगा। गणेश आप म्यूट हो, यू कैन स्टार्ट। गणेश सुनाई दे रहा है? आप म्यूट हो, म्यूट हो।
फिर से अभी हेलो, अभी आवाज आ रहा है सर? यस, बताइए। हाँ मैडम, एक तो सबसे बेसिक क्राइटेरिया है कि वो एटलीस्ट 3 साल पुराना होना चाहिए एफपीओ। हेलो। ओके। उसके बाद वो 3 साल से रेगुलर अपने आईटीआर, अकाउंट्स, ऑडिट और एमसीए पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉपरली फाइल करते रहना चाहिए। ओके। उसके बाद उनका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन, बायलॉज, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। उसके बाद पैन कार्ड, अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है उनका टर्नओवर है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन। फिर उनका मैनेजमेंट किस तरह का है तो उनका मैनेजमेंट का लिस्ट, जैसे एफपीसी है तो उनमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसके अलावा सीईओ और अदर कोई है। उनमें मैनेजमेंट के केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन, शेयर होल्डर्स का लिस्ट, कितने आर्टिजन्स, फार्मर्स और मैन्युफैक्चरर्स ये सब उनसे जुड़े हुए हैं उनका लिस्ट। उसके अलावा उन्होंने पास्ट में कुछ ग्रांट लोन लिया है तो उनका डिटेल्स। और कोई भी किसी भी एजेंसी से ब्लैक लिस्टेड या डिफॉल्टर में नहीं होना चाहिए। उनके पास सीएफसी बनाने के लिए या ऑफिस के लिए स्पेस है कि नहीं है तो वो क्या रेंटेड है तो उसका रेंटेड एग्रीमेंट, और लीज पे है कि या लेने वाले हैं, इस तरह का। इस तरह का हमको बेसिक डिटेल चाहिए होते हैं। और एग्जिस्टिंग में उनके पास क्या है, क्या क्या मशीनरी इक्विपमेंट उनके पास अवेलेबल है, क्या एक्टिविटी वो कर रहे हैं, और एक बेसिक कि उनको क्या चाहिए। उसमें से जो फिजिबल होगा उस हिसाब से हम देखेंगे, वो केस टू केस बेसिस। ओके। ओके। जी, आई थिंक अभी के लिए ये इंफॉर्मेशन सही रहेगा, और बाकी डिटेल्स तो ईमेल पे एक्सचेंज करेंगे हम। अपने एफपीओ साथियों की तरफ से कोई क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी क्लोज द कॉल? मैं पूछना चाहता था क्योंकि हम लोग का जो बेसिकली आसाम में, मेरा वॉइस आ रहा है ना? मैं हाँ वॉइस सर। हाँ क्लियर? हाँ। तो यस। आसाम में जो है ना, लोगों को लाइफ स्टॉक फार्मिंग का काफी ज्यादा मतलब ये है, एग्रीकल्चर से ज्यादा मतलब लाइफ स्टॉक के ऊपर उनका ये है। और लेकिन हमने एक चीजें देखा है कि यहाँ जो गुड क्वालिटी फीड जो होता है ना, जैसे पोल्ट्री हो गया या केटल हो गया या पिगरी हो गया, इनको जो न्यूट्रिएंट फीड मिलना मार्केट से खरीदना बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो हमने एक देखा मतलब सोचा है कि एफपीओ लेवल पे हम लोग छोटा छोटा मतलब एक प्लांट लगा के, मतलब वो 1.5-2 लाख रुपया के अंदर भी आ जाता है प्लांट। तो लगा के उसको प्रोसेसिंग करके अपना एफपीओ मेंबर्स को या लोकल एरिया के फार्मर को दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ लोकली अभी काफी मेज फार्मिंग वगैरह भी होने लगा है, कई रॉ मटेरियल्स तो अवेलेबल है। तो हम लोग एक एक फीड प्लांट भी कुछ सेलेक्टेड एफपीसीज में एस्टेब्लिश करने का सोच रहे हैं। तो ऐसा भी इनिशिएटिव आप लोग कर सकते हैं तो बढ़िया होगा मतलब। अच्छा आइडिया है, सोच सकते हैं, नोट कर लेंगे इसको, सोच सकते हैं किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ओके, थैंक यू। आप अपने राइटअप्स में ये आइडियाज के बारे में जरूर बताइएगा, ताकि एग्जिम बैंक जब राइटअप देखेंगे आपके बारे में और आपके बिजनेस आइडिया के बारे में, यस। तो उनको थोड़ा समझ आए कि क्या फर्दर लेके जाना चाहिए। श्योर श्योर। सर एक ओके। क्वेश्चन मेरा भी था। यस संदीप जी। जी, मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे कोई अगर प्रपोजल इस तरह का तैयार होता है किसी की तरफ से कि उसमें कोई कन्वर्जेंस का भी मॉडल हो, जैसे गवर्नमेंट के साथ में है या फिर कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल है, तो उसमें भी सब मिलेगा ना, मिल सकता है? सर सुनाई नहीं दिया। हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि जो कन्वर्जेंस के मॉडल के कुछ प्रोजेक्ट हम लोगों ने तैयार किए हैं पीएससी के साथ में, जैसे हम लोग यहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट अलग अलग चीज़ों पे काम कर रहे हैं, तो फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मॉडल्स होते हैं उसमें पब्लिक जैसे गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ सपोर्ट रहता है, कुछ कुछ प्राइवेट पार्टनरशिप पार्टनर्स के साथ भी रहता है।
तो इस तरह से अगर कुछ एफपीओसीज को कुछ और सपोर्ट आपकी तरफ से मिलता है तो उसमें पॉसिबिलिटी है सर। जैसे हम लोग टिश्यू कल्चर लैब यहाँ पे बोल रहे हैं यूपी में, तो वो उस तरह से नहीं, प्रोडक्शन उसका कोई दिक्कत नहीं, हम कोलैबोरेशन में भी काम कर सकते हैं। जी जी मतलब जो रिक्वायरमेंट का क्लियर बाइफर्केशन होना चाहिए, बिल्कुल मतलब डबल फाइनेंसिंग या डबल सपोर्ट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। कर सकते हैं। थैंक यू। राइट, ओके, सो क्योंकि हम ऑलरेडी 1 घंटे के ऊपर जा चुके हैं तो आई विल हैव टू क्लोज द कॉल नाउ। रविदास जी, एनी लास्ट कमेंट्स बिफोर क्लोजिंग? नो मैडम, ठीक है, जैसे विजय ने बताया था मुझे कि शॉर्टलिस्टिंग रिलेटिवली एस्टैब्लिश्ड एफपीओस and people are fairly educated on FPO and they know how to manage, and they're into this activity for many years, so we understand each other now. एक दूसरे को जानते हैं कि बिल्कुल बेसिक लेवल के एफपीओ तो है नहीं यहाँ पे, तो इनके काम करना आसान रहेगा हमारे लिए। वंस हम अपना इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते जाएंगे तो फर्दर अंडरस्टैंडिंग होगा। देन फॉर एग्जांपल आप 300 बता रहे थे, अभी इनके जो भी टीम है दे आर कंट्रोलिंग मोर देन 300 एफपीओस। हम एग्जिम बैंक की कंपेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशन छोटे हैं, तो हम सबको एट ए टाइम तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन देखते रहेंगे, जैसे पोटेंशियल है सबसे बेस्ट सूटेबल होता है करते जाएंगे। ये सिर्फ इस साल नहीं है, मतलब सालों साल करते जाएंगे कंटिन्यूअसली। किसी को आज अगर इस साल कंसिडर नहीं किया तो नेक्स्ट साल कर लेंगे, अगर स्टिल अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट। राइट राइट, इसी बात पे हम ऑनलाइन तो सुन नहीं सकते, बट आई एम श्योर हम सब एक कमरे में होते तो ताली बजती, रविदास जी। ये तो बहुत ही बढ़िया बात आपने बताया। तो वेरी नाइस, गुड टू हियर। और तो ये सिलसिला जारी रखेंगे, और विजय और वैशाली जो नाफको की तरफ से हैं वो कलेक्ट करेंगे सारे प्रपोजल और इंश्योर करेंगे कि एग्जिम बैंक तक पहुंचे। तो बहुत ही बढ़िया कॉल रहा, धन्यवाद हमारे सारे एफपीओ साथियों को भी। अच्छा बोला आपने, बहुत ही अच्छा बोला, कोई प्रिपरेशन के बिना आप इतना अच्छा बोल पा रहे हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, सो थैंक यू। एंड सुधा जी, वन मोर थिंग। यस, जैसे विजय ही यूज्ड टू कांटेक्ट मी ओनली, सिर्फ मुझे बात करते थे, ऐसे जरूरी नहीं। दिस इज माय टीम, ऑल आर इक्वली कैपेबल। कभी भी आप तीनों में किसी से भी रीच आउट कर सकते हैं। जरूर, we will Either do of it. one of us will attend your calls and whatever necessary है ना। ऐसे नहीं कि मेरे से बात कर रहे मैं अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ तो कैसे करें। यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू गणेश, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू शिल्पी, कीपिंग अस इन कॉपी, तो काम नहीं रुकेगा। करेक्ट, we'll do that, right. थैंक यू सो मच। तो अब कॉल क्लोज करते हैं और ईमेल पे आगे के नेक्स्ट स्टेप्स। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर सभी को। थैंक यू सभी को।